Hello students, how are you? Hope so that you all are fine, and I hope so also all of you have completed the exercise 4.1 of chapter number 4 quadratic equations. Today we are going to start the exercise 4.2. Before starting this exercise, students, firstly one thing we will discuss today: what is the means of roots? What is the means of roots? Roots means zeros. What is the means of root? Roots means zeros. Suppose if alpha is a root of a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, where a is never equals to 0, then a alpha square plus b alpha plus c equal to 0, then alpha is root of given quadratic equation. What is the means of it? If alpha is a root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, then अगर अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मीन्स x की जगह आपने अल्फा पुट किया और इसमें पुट a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू, और वैल्यू क्या आ गई इसकी 0 आ जाए, तो अल्फा क्या होगा? रूट होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. फाइनली मीन्स क्या हुआ? अगर कोई रियल नंबर कोई रूट्स दे रखा है उसका, मीन्स जब उस वैल्यू को इन प्लेस ऑफ वेरिएबल यू विल पुट करो, आप पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? उसका 0 आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, our exercise 4.2 of chapter number 4 quadratic equation. This exercise is based on, we have to find the roots of the following quadratic equation by factorization method. This is the question number 1 of this exercise. We have to find the roots of the quadratic equation by factorization method, is splitting the middle term. In previous class, in class 9th, in polynomial chapter, we have done how to split a quadratic polynomial. So I am going to remove this one. Now our question number 1 is of exercise 4.2. Question number 1 of first part, find the roots. We have to find the roots of the following quadratic equation by factorization method. First part is x square minus 3x minus k tan equals to 0. This is the first part of this question. We have to find the root of this quadratic equations, means by factorization method से. तो 10 के factor, we need two numbers such that their product is 10 and their difference is 3. ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट क्या हो? 10 हो और दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 3. देन 5 2 जा 10, वी नो 5 2 जा 10 एंड 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3. तो हम लिखने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह क्या लिखने जा रहे हैं? 5 माइनस 2 x एज इट इज एंड माइनस 10 एज इट इज इक्वल्स टू 0. नाउ ओपन द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस और x की मल्टीप्लाई 5 से माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2 की मल्टीप्लाई x से 2x माइनस के 10 इक्वल्स टू 0. इन फर्स्ट टू टर्म वी कैन टेक कॉमन x. व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट? x माइनस 5. इन नेक्स्ट टू टर्म्स we can take in both the terms 2 common, then what is left in the bracket? X minus 2 5s are 10, that is 5 equals to 0. Here we are observing that x minus 5 is available in both the terms, then we can take x minus 5 common, x minus 5, then what is the left in the bracket? X, or here
प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इनको 0 के इक्वल रखेंगे रूट्स निकालने के लिए। इफ x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 5। एक रूट क्या आ गया इसका? 5 आ गया। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 आ गया। सो 5 एंड -2 are roots of given quadratic equation। मीन्स जब आप x की वैल्यू 5 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। या आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू -2 तब भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, नाउ वी आर I am going to remove this part from here. Now second part easily you can complete. Third part I am going to solve. Part number 3rd of this question. Equation is root 2x square plus के 7x प्लस के 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द सेकेंड पार्ट। हेयर द कांस्टेंट टर्म इज रूट 2 एंड 5 रूट 2। तो रूट 2 की मल्टीप्लाई जब हम 5 रूट 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। 5 एज इट इज रूट 2 की रूट 2 से 2, 5 2 या 10। तो 10 के फैक्टर प्लस करके क्या आना चाहिए? 7। दो ऐसे नंबर, वी नीड सच टाइप ऑफ 2 नंबर्स whose product is 10 and whose sum is 7। 5 2 जा 10। तो रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स एज इट इज प्लस के 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। दिस implies, open the bracket here, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। यहां पर ब्रैकेट ओपन कर दिया, x की मल्टीप्लाई दोनों से कर दी, x की 5 से 5x, x की 2 से 2x, 5 रूट 2 एज इट इज एंड रूट 2 एक्स स्क्वायर भी एज इट इज। इन फर्स्ट 2 कॉमन, व्हाट वी कैन टेक कॉमन हियर? x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? रूट 2x प्लस का 5 प्लस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स? वी कैन राइट 2 इक्वल्स टू रूट 2 इंटू रूट 2, द प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 एंड रूट 2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहां पर लिख दीजिए, दोनों में से कॉमन क्या ले लिया हमने? रूट 2 कॉमन लिया। तो जब 2 में से 2 इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू रूट 2, 1 रूट 2 वी हैव टेकन कॉमन, एक कॉमन ले ले तो एक बचेगा ना रूट 2। यहां पर क्या बचेगा? रूट 2 दिस x एज इट इज प्लस 5 रूट 2 में से रूट 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फाइनली रूट 2x प्लस 5 इट is available in both the terms, so we are going to take common here again। रूट 2x प्लस 5 यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा? x प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा? रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अब सेपरेटली दोनों को 0 के इक्वल ले लीजिए, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द रूट्स। इफ रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन रूट 2x इक्वल्स टू प्लस 5, राइट साइड जाके -5, देन द वैल्यू ऑफ x इज -5 अपॉन मल्टीप्लाई का रूट 2 कहां जाएगा? डिवाइड में। एंड दूसरा ले लीजिए, इफ x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, प्लस रूट 2 उधर जाके x इक्वल टू क्या आ गया? माइनस रूट 2। तो एक रूट क्या आ गया आपका? माइनस रूट 2, और एक रूट आपका क्या आ गया है? माइनस के 5 अपॉन रूट 2। सो लास्ट टाइम वी कैन राइट हियर माइनस के 5 अपॉन रूट 2 एंड माइनस के रूट 2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके क्या होगा? ये रूट्स हो गए हैं। ओके, दिस पार्ट वी हैव डन। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट from the board. It was the third part of the question number 1 of exercise 4.2. Now our next part, what is the next part? Study the next part.
from the book? Our next part number 4 is 2x square minus x plus 1 upon 8 equals to 0. This is the part number 4. Here the equation is 2x square minus x plus 1 upon 8 equals to 0. So here we are going to take the LCM. The LCM of 8 1 1 is 8. कॉमन लेने जा रहे हैं LCM 8. तो 8 2 जा 16x square minus 8x और plus 1 equals to 0. We can shift 8 on right side. Then when the product of 8 with 0, what comes? 0. Now we need 16 1 जा 16 के ऐसे फैक्टर प्लस करके क्या आना चाहिए? 8. We need such type of two numbers whose product is 16 and whose sum is 8. 4 4 ja 16. Then in place of 8 we can write 4 plus 4. X as it is plus 1 as it is equals to 0. Open the bracket. 16x square minus 4x minus plus minus 4x और plus के 1 equals to 0. In first two term we can take what common? 4x we can take common here. Then what is left? 4x minus 1. नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया. माइनस 1 की माइनस 4x से प्लस 4x माइनस 1 की प्लस 1 से माइनस 1 इक्वल्स टू 0. 4x माइनस 1 इज अवेलेबल इन बोथ द टर्म्स. दोनों टर्म्स में अवेलेबल है ये, तो इसको कॉमन ले लिया. 4x माइनस 1 हमने यहां से, तो क्या बच जाएगा यहां पर? 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. नाउ टेक 4x minus 1 equals to 0, then 4x equals to 1. This implies x equals to 1 by 4. Similarly, if again 4x minus 1 equal to 0, then 4x equals to 1, then x equals to 1 upon 4. So 1 by 4 comma 1 by 4 are roots of given क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, क्या है ये? इसके रूट्स हैं. दिस इज द पार्ट नंबर 4. स्टूडेंट्स, यू कैन डन लास्ट 5th पार्ट बाय योरसेल्फ. नाउ सेकंड क्वेश्चन आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 4.2. द सेकंड क्वेश्चन इज सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1. एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दे रखी है उसको सॉल्व करना है. तो जस्ट कम टू द पॉइंट. Come on at page number 71 of example number 1. This example is related to word problems. So study this question. Study the example. What is this? In this example, there are two parts. How many parts are there in this example? 2 parts are there. Now, firstly, we are going to solve the part number 1. The part number first is John and Jivanti together have a 45 marbles. दोनों के पास कितने marbles हैं? 45 हैं. Both of them lost 5 marbles each. दोनों के दोनों 5 marbles दोनों के खो जाते हैं. And the product of the number of marbles they now have is 124. 5 होने के बाद अब जो मार्बल्स हैं उनके पास उनकी जो प्रोडक्ट है आपस में वो कितनी है? 124 है. तो वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ. तो हमने लेट किया यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन. लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स. हमने मान लिया कि जॉन के पास जो मार्बल थे वो कितने थे? x थे. देन तब नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती
हेड। अब जॉन के पास कितने थे, टोटल मार्बल कितने थे हमारे पास 45। अगर जॉन के पास x थे तो उसके पास कितने थे 45 माइनस एक्स। ओके, व्हेन 5 marbles lost from both members, जब दोनों की साइड से 5-5 मार्बल खो जाते हैं तब then number of marbles लेफ्ट विथ जॉन। अब जॉन के पास कितने रह जाते हैं, कितने थे जॉन के पास, पहले x थे, 5 कम हो गए तो कितने हो गए जॉन के पास x माइनस 5। नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवांती। अब जीवांती के पास कितने हो गए थे, कितने जीवांती के पास 45 माइनस एक्स, माइनस 5 कर दीजिए, उसमें से क्या रह गए 40 माइनस एक्स रह गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा अब जो दोनों के पास मार्बल रह गए हैं यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी x माइनस 5 का जो प्रोडक्ट है 40 माइनस एक्स के साथ वो कितना है, अब वो है 124, वो 124 दे रखा है आपको। सॉल्व दिस इक्वेशन, x की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे क्या आएगा 40x, x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की 40 से माइनस के 200, माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से प्लस के 5x इक्वल्स टू 124। दिस इंप्लाइज 40x एंड 5x कितना हुआ 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल्स टू 124। सबको राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, बिकॉज द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, ऑलवेज वी विल टेक द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर राइट साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 45x उधर जाके माइनस 45x हो जाएगा, माइनस 200 राइट साइड जाके प्लस 200 हो जाएगा और प्लस 124 एज इट इज इक्वल्स टू 0। नाउ this equation we are going to solve upper side because we are not having the more space here। हटा दीजिए यहाँ से ऊपर से इसको। The final equation is x square minus 45x plus 324 equals to 0. Now we need the factor of, we need two numbers, such type of numbers we need whose product is 324 and whose sum is 45। ऐसे दो नंबर चाहिए हमें कि जिनकी प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए 324 और जिनका सम आना चाहिए क्या 45 आना चाहिए। तो 36 की मल्टीप्लाई अगर हम 9 से करें तो क्या आएगा 324 आएगा, और 36 में 9 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो हमने क्या ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस, इन प्लेस ऑफ 45 वी कैन राइट 36 प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज x प्लस के 324 इक्वल्स टू 0, ओपन दिस ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस के 324 इक्वल्स टू 0। इन फर्स्ट टू टर्म वी कैन टेक कॉमन, क्या कॉमन ले सकते हैं x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 36, नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचेगा माइनस प्लस माइनस, जब 9 को 324 से डिवाइड करें क्या आ जाएगा 36 इक्वल टू 0। सो व्हाट बिकम्स हियर we can, because x minus 36 is available in both the terms, तो we can take common x minus 36। तो क्या बच जाएगा, अब यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर माइनस 9 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। इफ x माइनस 36 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 आ जाएगी, इसको ले लीजिएगा। इफ
x माइनस के 9 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या आ गई है 9. दो वैल्यूज आ गई हैं x माइनस 36 एंड x इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू 9. सो x इक्वल टू 9 and 36 are the required roots. ये क्या है, इसके required roots हैं. Okay, students, you will complete these all question in your fair notebook. I am going to remove this part from here now. Now, second part you can complete by yourself. Now I am going to solve the question number 3 of this exercise. The question number 3 is find two numbers. We have to find the two numbers whose sum is 27 and product is 182. Let two numbers are, question number 3 of exercise 4.2. Let first number be x. हमने पहला नंबर क्या मान लिया, x मान लिया. इन्होंने कहा दोनों नंबर का सम 27 है. देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर दोनों का सम कितना है 27 है, तो सेकंड नंबर भी 27 माइनस एक्स. अगर दो नंबर हैं आपके पास, सपोज टू नंबर्स का सम 10 है और एक नंबर है 3, देन व्हाट विल बी द सेकंड नंबर. सेकंड नंबर क्या होगा, 10 में से उसको माइनस कर दीजिए 3 को, सेकंड नंबर 7 आ जाएगा. तो पहला नंबर x था और दोनों का सम 27 था, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे रखा है 182. पहला नंबर x, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182. नाउ ओपन द ब्रैकेट, x ही मल्टीप्लाई 27 से, 27x माइनस एक्स की x से, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182. शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड इनको, माइनस एक्स स्क्वायर राइट साइड जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 27x राइट साइड जाएगा, माइनस 27x प्लस के 182 इक्वल टू 0. अब we need two number here in this question. Again we need two numbers whose product is 182 and whose sum is 27. Student, you can face the problem to calculating the such type of numbers. In that case, what you can do? You can do the factors. You can find the factors and balance them to identify the given condition, to justify the given condition. For that, what you can do? 182 के फैक्टर करेंगे आप, उनके फैक्टर और दो ग्रुप में बांट लेंगे उन फैक्टर्स को, और चेक करेंगे कि उन सारे नंबर्स को चेक करेंगे कि प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए 182, दो ग्रुप में बांटने के बाद, और उनका सम क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए. इसमें क्या होंगे आपके, कर लेते हैं फैक्टर एक बार 182 के. आपको 182 के फैक्टर 2 से किया हमने 9 1, अगेन 3 से किया, नहीं जाएगा 3 से, 7 से किया 13, हाँ 13 से किया 1, तो 7 2 जा 14. हमने दो नंबर आ गए हमारे 14 और 13, दोनों का सम क्या आ रहा है 27 आ रहा है, और दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी 14 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे क्या आएगा 182. हमारे फैक्टर क्या आ गए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 ब्रैकेट क्लोज x प्लस के 182 इक्वल टू 0. नाउ ओपन द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस के 182 इक्वल टू 0. इन फर्स्ट टू टर्म वी कैन टेक कॉमन x. पहले दो टर्म्स में से x कॉमन लिया, x माइनस 14, नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 13 कॉमन लिया, x माइनस 14. दोनों टर्म्स में x माइनस 14 कॉमन है, ले लीजिए, x माइनस 14 कॉमन लिया, यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 13. ओके, अब इनको 0 के इक्वल ले लीजिए, ऊपर से रिमूव कर रहे हैं.
इफ x माइनस के 14 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस 14. इफ x माइनस के 13 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13. सो required numbers are 14 and 13. क्या हो जाएंगे 14 and 13. Okay student, up to question number 3 you will complete of exercise 4.2. tomorrow we will start from the question number 4. till then complete your work and you have to revise the exercise 4.1 with your example. Thank you, have a good day.